A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic related to the class 12 business studies. As you know very well, in the last few videos, we already completed a lots of the chapter from the part A as well as the part B of class 12 business studies according to the syllabus issued by the CBSE for the academic year 2021-22. So you know very well, in today's video we discussed the very important chapter of your syllabus, that is in consumer protection. Consumer protection is the last chapter of your syllabus. Please note down. This is the last chapter of your syllabus. And number second, why it is important for us? Because CBSE changed the content in the Consumer Protection Act. You know very well, in the last year, in the second last year, that is in 2019, the government changes and revised the Consumer Protection Act. Due to the COVID-19 situation, you know very well, in the last academic year 2020-21, CBSE could not implement the revised part of the Consumer Protection Act in the class 12 business studies. But for the academic year 2021-22, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जितने भी चेंजेस हुए हैं, चाहे वो मॉनेटरी चेंजेस हो, चाहे वो थ्योरेटिकल चेंजेस हो, चाहे वो लॉस को लेकर चेंजेस हो, उन सारे चेंजेस को इस करिकुलम में आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। और जो भी पुराना कंटेंट था रिलेटेड टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसको हटाया गया है। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर नंबर 12 दैट इज ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, हमें ये पता होना चाहिए कि ये चैप्टर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सो एज पर द कंटेंट according to the latest CBSE syllabus, we can say that this chapter is a very important for us because इस चैप्टर में काफी कुछ चेंजेस किया गया है, यानी जो पुराना कंज्यूमर प्रोटेक्शन था उसे हटाकर नया जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंट हुआ है इन ऑल ओवर इंडिया, उसे आपके कोर्स में इंक्लूड किया गया है। सो अगर किसी स्टूडेंट्स के पास पुरानी बिजनेस स्टडीज की बुक है, सो प्लीज आप वो पुराने टॉपिक्स, वो पुरानी लॉज एंड रेगुलेशंस को मत पढ़िएगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस सीबीएसई ने इस टॉपिक में काफी कुछ चेंजेस किया। सो विदाउट गेटिंग डिले, लेट्स वी स्टार्ट व्हाट आर द कंटेंट which we will discuss in this chapter. So let me start. So in this chapter, which type of content included in this chapter as per latest CBSE syllabus? बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो जो कंटेंट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो लगभग सेम है, जो आपको पहले भी वही पढ़ने थे, बट उसकी जो इंटरनल पार्ट्स हैं, जैसे कंपनसेशन की अमाउंट है, कंपनसेशन के लिए जो डेज मिलेंगे आपको, जुडिशियल सिस्टम्स हैं, और इसमें किस तरह से आप कंप्लेंट कर सकते हैं, उन सब के मोड्स में काफी कुछ चेंजेस किए गए। सो कंटेंट्स या हेडिंग जिसे हम लोग कह सकते हैं, वो सारे लगभग सेम है। सो व्हाट आर द कंटेंट इंक्लूडेड एज पर लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस? दैट इज एन कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। यानी सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, as well as we discussed the Consumer Protection Act. Consumer Protection Act
Okay, as well as we discuss in this chapter about the number third point related to this chapter, that is in consumer rights in India. Consumer rights in India. As well as we discussed in this chapter the list out the consumer responsibilities. Consumer responsibilities. Number fifth point related to this chapter is ways and means of consumer protection. Ways and means of consumer protection. As well as we discuss in this chapter, the sixth and very important point is role of consumer organization and NGOs. Role of consumer organizations and NGOs. So basically, according to the latest syllabus given by the CBSE, the chapter number 12 includes the 6 important points. Number 1 is a concept and importance of consumer protection, यानी हमारे इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्या मतलब है और वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है. Number 2, what are the legal frame related to the Consumer Protection Act. लीगल फ्रेमवर्क क्या बनाया गया है. जो पुराना कंज्यूमर एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट था और जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें क्या डिफरेंस है और उसमें क्या लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया है जिससे कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके. As well as we discussed in this chapter, that is in consumer rights, यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन में, इस एक्ट में कंज्यूमर को कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं. कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी व्हाट आर द कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाट आर द वेज एंड मीन्स ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी कंज्यूमर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से तरीके अपना सकता है, कौन कौन से उसके पास रास्ते हैं. और इंडिया में कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो डिफरेंट कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एनजीओज हैं, नाम सुना होगा. एनजीओज मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो चलाए जाते हैं, उनका कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में क्या रोल है, उनको कैसे फॉर्म किया जाता है, आखिर क्या जरूरत पड़ी हमें कि इनकी हमें जरूरत पड़ी. सो let's we discuss one by one. Firstly, we discuss the concept and importance of the consumer protection. Okay, so if we are talking about the first topic of this chapter, so it will be known as the important point, that is an concept and importance of कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले बेसिकली ये बात है कि हमारे देश में किस तरह का कॉन्सेप्ट चलता है. बेसिकली अगर बात करें तो कंज्यूमर इज सेड टू बी अ किंग इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, यानी हमारी इकोनॉमी में कंज्यूमर को किंग कहा जाता है. वही पिन पॉइंट होता है. All the activities done by the marketer as per the need and wants of the consumer. So it is our responsibility to protect the interest of the consumer. ऐसा ना हो कि हम कंज्यूमर को कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या कोई प्रोडक्ट उसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके साथ किसी भी तरह का कोई भी अन्याय हो, जिसे बोलते हैं इनजस्टिफाइड. सो यू नो वेरी वेरी, अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट जो पहले था, कॉन्सेप्ट की बात करें, अगर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट की बात करें तो द अर्लियर अप्रोच ऑफ कैविएट इंपटर, कैविएट इंपटर
और अब जो कॉन्सेप्ट है उसे हम लोगों ने चेंज कर दिया है, उसे हम लोगों ने कर दिया कैविएट बायर। यानी कि जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट की बात करें तो वहां ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट हमारे कहता था कि सॉरी फॉर दैट, यहां कैविएट वेंडर होगा पहला। अगर हम ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट की बात करें तो कैविएट इंपटर था, यानी लेट द बायर बिवेयर, लेट द बायर बिवेयर। मतलब ये था, पहले ये कॉन्सेप्ट चलता था हमारी इंडिया में, या हम कह सकते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कंज्यूमर प्रोटेक्शन के कॉन्सेप्ट आने से पहले कॉन्सेप्ट था कैविएट इंपटर। कैविएट इंपटर मतलब लेट द बायर बिवेयर, मतलब किसी भी कंज्यूमर को कोई प्रोडक्ट खरीदते वक्त या फिर सर्विस को लेते वक्त हमेशा अवेयर होना चाहिए। यानी कि अब हमारा क्या कहने का मतलब है, आई वॉन्ट टू से दैट कि पहले हम लोग कहते थे कंज्यूमर से कि अगर आई एम द कंज्यूमर एंड आई वांट टू परचेज द मार्कर, सो हमें अवेयर होना चाहिए। लेकिन अब ये थोड़ा सा चेंज किया गया है। अब चेंज कॉन्सेप्ट किया गया है लेट द सेलर बिहेव। मतलब ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर को अवेयर होने की जरूरत नहीं है, कंज्यूमर को भी या बायर को अवेयर होने की जरूरत है, लेकिन इसके साथ साथ हमें सेलर को भी क्या करना होगा, अवेयर करने की जरूरत है। यानी वेंडर को किसी भी प्रोडक्ट को सेल करते वक्त या सर्विस को प्रोवाइड करते समय बायर के साथ किसी भी तरह का कह सकते हैं मिसप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि हम प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं और उसकी बहुत सारी बेनिफिट्स बता रहे हैं, बट एक्चुअलिटी में या रियलिटी में वो प्रोडक्ट उन सारे बेनिफिट्स का बंडल नहीं होता, बिकॉज यू नो प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज। सो हम प्रोडक्ट को बेचते वक्त बताते हैं कंज्यूमर को कि आपको इससे ये बेनिफिट्स मिलेगा, आपको इससे ये बेनिफिट्स मिलेगा। तो पहले कॉन्सेप्ट ये कहता था कि बायर को अवेयर होना चाहिए, बायर को जागरूक होना चाहिए किसी प्रोडक्ट को जानकर देने के लिए कि उस प्रोडक्ट से आपको वो यूटिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन अब वेंडर को भी सेलर को भी बिवेयर मतलब अवेयर होने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। जागरूक इन विच सेंस कि वो किसी भी प्रोडक्ट को अगर बेच रहा है तो वो किसी भी तरह का मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो, फ्रॉड ना हो। अगर ऐसा होता है तो कंज्यूमर उनके खिलाफ केस कर सकता है। आप लोगों ने बहुत सारे एड्स देखे होंगे जागरूक ग्राहक जागरूक। ये एड्स क्यों चलाए जाते हैं? ताकि कंज्यूमर अपने राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को जाने। किसी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले आंख बंद करके उस प्रोडक्ट को ना खरीदें, इसीलिए कैविएट इंपटर की पॉइंट से भी रखा गया। लेकिन उसके साथ साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एक एक्ट बनाया गया इंडिया में, बहुत पहले था, उसको भी रिसेंटली रिवाइज किया गया ताकि कंज्यूमर के राइट्स को हम प्रोटेक्ट कर सकें। कई तरह के जुडिशियल सिस्टम्स बनाए गए, रेजिडेंशियल एजेंसीज बनाई गई ताकि कंज्यूमर्स को जस्टिस मिल सके अगर उनके साथ किसी भी तरह का कोई अनजस्टिस हुआ है तो। आइए हम लोग इसके इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट कहां से आया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट यहीं से आया कि सिर्फ और सिर्फ हमें अवेयर ही नहीं करना है कंज्यूमर को, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन की भी बात हमें करनी है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इस टॉपिक को हम लोग कुछ हेडिंग्स के हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। कुछ हेडिंग्स मतलब अगर हम बात करें कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, अगर हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, सो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पे हाउ वी विल से दैट कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट एक्ट फॉर अस। सो कंज्यूमर के पॉइंट से हम लोग बात करें, सो वी कैन से दैट द नंबर वन इज कंज्यूमर इग्नोरेंस। पहले मैं पॉइंट बता देता हूं आपको
ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। कंज्यूमर इग्नोरेंस, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स। नंबर थर्ड हम ये बता रहे हैं कि व्हाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंज्यूमर। वाइड स्प्रेड exploitation of consumer। ये कुछ हेडिंग्स हैं जिससे आप इजीली समझ सकते हैं कि व्हाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंज्यूमर। सो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें कि व्हाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज इंपॉर्टेंट, so number one is consumer ignorance. What is the meaning of consumer ignorance? You know very well, consumer have lots of the rights and the responsibility given under the consumer protection. So ये कुछ rights हैं और कुछ responsibility हैं जिससे consumer को ignore करने से, कौन ignore करेगा consumer को? Seller। अगर suppose we are the seller और अगर हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और आई नो वेरी वेल कि उस प्रोडक्ट में कोई कमी है या उस सर्विस में जितना हम उससे प्राइस चार्ज कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में उसको हम वो सेटिस्फैक्शन या वो यूटिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं कंज्यूमर की कंप्लेंट को इग्नोर करेंगे। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की हेल्प से कंज्यूमर अपनी वॉइस को रेज कर सकता है, कंज्यूमर अपनी वॉइस को लोगों के सामने रख सकता है और स्ट्रांगली वे में रख सकता है। ओके, नंबर सेकंड, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। यू नो वेरी वेल, बिफोर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया, देयर इज नो या लिटिल बिट ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट इन इंडिया। मतलब हमारे देश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कि आने के पहले आने के बाद भी अभी भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ, यानी कई तरह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो हैं, जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, वो अभी भी बहुत वे में ऑर्गेनाइज नहीं हो पाए हैं। आप बहुत ही कम कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस के नाम जानते होंगे। क्या होते हैं कंज्यूमर ऑर्गेनाइज? जैसे अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? यू नो वेरी वेल, हम कोई प्रोडक्ट खरीदे गए और प्रोडक्ट को खरीदा, पैसा दिया और उस प्रोडक्ट में कोई कमी निकला या उस सर्विस में हम सेटिस्फाई नहीं हुए, तो हम अगर डायरेक्टली कंप्लेन करने जाएंगे कोर्ट में या डायरेक्टली उस सेलर अगर हमें इग्नोर कर रहा है उसके बाद हम उसकी कंप्लेन करने जाएं पुलिस स्टेशन में या कंज्यूमर कोर्ट्स में, सो कोई हमारे बैक में नहीं रहता। और ऐसे कई लोगों की कंप्लेन कोर्ट्स में चलती है, एज यू नो वेरी वेल। हमारे यहाँ का जो जुडिशियल सिस्टम है वो थोड़ा सा डिले वर्क करता है। सो अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर पे अगर हम फोकस करें, सो अगर हमारे देश में एक प्रॉपर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होगा या कंज्यूमर प्रोटेक्शन होगा, तो अगर अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स हैं तो भी कंज्यूमर अपनी बात को सही ढंग से प्रेजेंट कर सकता है। लेकिन काफी डेवलप देखने को मिला है। अगर आप लास्ट 20 इयर्स के डाटास को अगर एनालाइज करेंगे तो लॉट्स ऑफ द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन वेयर फॉर्म्ड इन आवर कंट्री और आगे भी बन रहे हैं। उसके लिए कई एनजीओज भी आ रही हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जो आपको आपके साथ हुए इनजस्टिस को जस्टिफाई करने के लिए उसके लिए जस्टिस दिलाने के लिए आपको सपोर्ट करती है। वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर का मतलब है कि consumer might be exploited by unscrupulous, exploitative and unfair trade practice, adulteration, false and misleading advertisement, hoarding, black marketing. Consumer need protection against such malpractices of the seller. आपको पता है
कि कंज्यूमर कभी कभी कंज्यूमर को पता ही नहीं रहता है कि उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है, बिकॉज कंज्यूमर जो सेलर होते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए इतना हैवी एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, होर्डिंग्स की यूज करते हैं, एडल्ट्रेशन करते हैं, एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट करते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट में आपको गलत गलत चीजें बताते हैं और यू विल बिकम एक्सप्लॉइटेड, बट आपको पता नहीं होता। सो मेरे अकॉर्डिंग, एंड अगर आप अपनी बुक को उठाएंगे सो टोटली यही 3 हेडिंग दी हुई है कि व्हाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज कंज्यूमर को कई स्टेजेस पे इग्नोरेंस का फेस करना पड़ता है। कंज्यूमर अभी भी हमारे देश में कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ कंज्यूमर अभी भी ऑर्गेनाइज नहीं हो पाए हैं। मेट्रो सिटीज को छोड़ दीजिए, जो नॉन मेट्रो सिटीज हैं, जो छोटे छोटे गांव हैं और छोटे छोटे जिले हैं, शहर भी अगर छोटे छोटे, वहाँ पे भी कंज्यूमर ऑर्गेनाइज नहीं हो पाए, यानी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप नहीं हो पाए ताकि वो अपनी बातों को सही ढंग से रख पाए। सो उन्हें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का सहारा लेना पड़ता है। वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का वाइड स्प्रेड लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन बहुत बढ़ गया है। मिस रिप्रेजेंटेशन, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, एडल्ट्रेशन, ब्लैक मार्केटिंग। ओके, सो these are the few points which explains why consumer protection is important. Second, if we are talking about the point of a business, so business point of view, आपको पता है एक कहावत है, गेहूं के साथ घुन भी पिसाता है। सो कहीं ना कहीं कुछ अच्छे जो सेलर होते हैं, जो ईमानदारी से अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करते हैं, वो भी ब्लैक मार्केटिंग करने वाले, एडल्ट्रेशन करने वाले सेलर के कारण उनके ऊपर भी शक किया जाता है। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के आने से एक चीज सबसे बेटर हुई है कि अगर हम बात करें ये ब्लैक मार्कर है, एंड इट मींस कि ये जो सेलर है वो ब्लैक मार्केटिंग करके प्रोडक्ट को बेचता है, एडल्ट्रेशन करके प्रोडक्ट को बेचता है, और ये बहुत ही ईमानदारी से बेचता है। सो आपको पता है कि प्रॉफिट किसको होगी और किसको लॉस होगा, मतलब किसको ज्यादा प्रॉफिट होगी, किसको कम प्रॉफिट होगी। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के आने से इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो कहीं ना कहीं इसके बिजनेस पे क्या लग सकता है, ताला लग सकता है। इसको हमेशा डर रहेगा, इसको हमेशा इसके आसपास जो है कंज्यूमर का जो एक तरह से कंप्लेंट्स हैं उसकी भरमार लग रही है। लेकिन कंप्लेंट्स की भरमार लगने के बाद भी लोगों को जस्टिस नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन आ जाएगा तो कहीं ना कहीं जो सही ढंग से बिजनेस करने वाले लोग हैं उनको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि मार्केट से ब्लैक मार्केटिंग करने वाले बिजनेसमैन, एडल्ट्रेशन करने वाले बिजनेसमैन वो बाहर हो जाएंगे, तो जो सही ढंग से बिजनेस कर रहे हैं उनको प्रॉफिट मिलेगा और उनको इंकरेजमेंट भी मिलेगी। नहीं तो अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो कहते हैं ना कि बुरे को देख के ही लोग बुरे बनते हैं, अच्छे को देख के लोग अच्छे नहीं बनते, लेकिन बुरे को देख के बुरे बनते हैं। इसीलिए कि अगर ये बुरा है और ये आगे जा रहा है तो ये कहेगा अरे वो तो आगे जा रहा है, मैं भी आगे जाऊंगा। सो इस कॉन्सेप्ट के कारण खरबूजे को देख के रंग बदल, ऐसी कोई कहावत मुझे याद नहीं आ रही है। सो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का भी इंपॉर्टेंट है, जैसे लॉन्ग इंटरेस्ट इन द बिजनेस। Business realize that it is their long interest to satisfy their consumers, यानी अगर किसी बिजनेसमैन को लगता है कि उसे अपने कंज्यूमर का इंटरेस्ट बनाए रखना है, कंज्यूमर हमारे हाथ से जाए ना, तो वो कभी भी एडल्ट्रेशन, ब्लैक मार्केटिंग या कंज्यूमर इग्नोरेंस चीज़ों को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसे लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है। जैसे अगर मैं ही मान लीजिए मेरे कैरियर के सारे ऑप्शंस बंद हो गए और मैंने कोई बिजनेस ओपन किया, तो मुझे पता है कि ये बिजनेस अगर मैं अच्छे से नहीं करूँगा तो मैं सड़क पे आ सकता हूँ, या मेरे घर में रोजी रोटी नहीं रहेगी, खाने के लिए नहीं रहेगा। सो हम उस काम को ईमानदारी से करेंगे। वैसे तो सारे काम को ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन जब किसी पर्सन के पास लास्ट ऑप्शन होता है तो उस ऑप्शन में वो जी जान लगा देता है।
जैसे अगर आपका कोई एग्जाम है और आपको लास्ट अटेम्प्ट मिला हुआ है, सो आप लास्ट अटेम्प्ट में इतनी मेहनत करेंगे कि आपको हो सकता है इतने मार्क्स मिल जाएं कि आपने कभी सोचा भी नहीं। सो जस्ट लाइक दैट, अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन है मार्केट में, तो हमेशा पहली बात है कि जो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले हैं वो तो बाहर हो जाएंगे, उनके खिलाफ कंप्लेंट्स आएंगी और उनको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से काफ़ी बल मिलेगा, और जिसके कारण वो बाहर हो जाएंगे। और जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ऑनेस्टी से वर्क कर रहे हैं, उनको मोटिवेशन मिलेगा। ये सारी इंपॉर्टेंस तो हैं बिजनेस के पॉइंट। उसके साथ साथ ये भी है कि अगर कोई बिजनेसमैन चाहता है कि उसके कंज्यूमर लॉन्ग टर्म में उनके साथ जुड़े रहें, उनका इंटरेस्ट बनाए रखें, तो उसके लिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है। कि अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं होता तो लोगों के मन में ये सारी चीज़ें आती नहीं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाम सुना होगा आप लोगों ने। बिजनेस को हमेशा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल करनी पड़ती है। सो दैट्स व्हाई अ बिजनेस हैज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स. Business organization make money by selling goods and providing services to consumers. Thus, consumer form an important group among the many stakeholders of business, like other stakeholders. As well as the very important point is business uses society's resources. सो बिजनेस के लिए क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ऑफ बिजनेस ही क्या करता है, ये चाहता है कि वो अपने कंज्यूमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाए रखे। उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी को सही दाम पे, करेक्ट वैल्यू पे, रीजनेबल प्रोडक्ट प्रोवाइड करे, रीजनेबल प्राइस पे जो फेयर प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड करे। एज वेल एज बिजनेस यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेज, क्योंकि बिजनेस जो है वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करता है। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू गिव द सोसाइटीज इन वेल फॉर्म। मतलब अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस कैसे कर रहे हैं? सोसाइटी के रिसोर्सेज को, सोसाइटी के लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को यूज करके हम बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर हम उनके रिसोर्सेज पे सही ढंग से रिटर्न नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर रहे हैं। सो दीज आर द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स which are related to the importance of the consumer protection from consumer point of view and business point of view. Now let's we move to the next topic. The next topic of this video is legal protection. So please note down, the next point is legal protection to consumers. So if we are talking about the legal protection provided to the consumer, so you know very well, the Indian legal framework consists a number of regulations which provide protection to consumers. As per Right to Information Act 2005, as per Right to Information Act 2005, as per Right to Information Act 2005, Section 4, all relevant information is required to be made available to all citizens of the country, and the regulations are given. So what are the legal protection
given to the consumer. Number one is Consumer Protection Act 19